1 में 70-80% सर्वाइवल है, स्टेज 2 में 60-70% सर्वाइवल है, और स्टेज 3 में एकदम कम हो जाता है 30-40%, और स्टेज 4 में सर्वाइवल होता नहीं। ये भी सच है कि कुछ पेशेंट्स बचते हैं, कैन नॉट नो व्हाई। You are watching Surgery Simplified, शस्त्रकला सरल शब्दों में। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्जरी सिंप्लीफाइड, शस्त्रकला सरल शब्दों में। हेलो डॉक्टर, वेलकम back again. So this is a continuation of our last episode where we were talking about blood coming out of stool. So what are the other symptoms, or is there anything else that you would like our viewers know? Yes, and hello to all the viewers. Now continuing with our symptom of where the patient comes with blood in the stools. We will like to separate this into two parts. One is blood which the patient sees, and blood which is diagnosed on occult blood test of stools. Okay, obviously that becomes an examination. This is a symptom. So we discussed piles last time, which is the commonest condition, but there are other two conditions which are not as common, especially in Indians, but which also can come with blood in the stools. The first is cancer of the large intestine. Now, what is the large intestine? The large intestine is also called colon, and it is where the small intestine ends, and it goes along the lateral side of the intestine across the abdomen and on the left side. So we have the right side colon, we have the left side colon, and we have the connecting part which is the transverse colon, because it is transverse. So your right colon, transverse colon, left colon, and the rectum. Okay. If you take generally cancers of the colon, 75% of the cancers are located on the left side. Okay. How is that? I mean, It's just the incidence that most of the cancers are seen on the left side. Now there is a reason for that, which I'll come to in a minute. The remaining 25% of the cancer colons are on the right hand side. Therefore, if the cancer is on the left side and it is lower down, then there is a very high possibility that when the cancer breaks off, pieces of the cancer break off, blood comes out, and it can come with blood in the stools, which the patient can see, like piles. Okay, but it can also come with, suppose the right side colon, the blood will not come directly in the stools, but it will be seen as a occult blood in the stools. So we have to take a stool sample 3 times and see under the microscope. Okay, so that is the way this will present. Now this will present with other symptoms as we discussed last time. Some vague pain in the stomach, loss of weight, loss of appetite, and anemia and occult blood positive. This side it will come more as, this side cancers, there are 2 types. One is which grows like a cauliflower into the rectum, like a cauliflower, big mass. okay. The other is it becomes a stricture. That means it narrows the rectum, narrows like this, and completely blocks. So patient comes with blockage of the intestine, and then we find out that he also had bleeding in the stools. Okay. Okay. The treatment of both cancer colon, whether it is right side or left side, is almost the same. So we will discuss basically in general terms, just for the sake of patient awareness. Right. I want to just impress upon patients that if they have any kind of blood in the stools at any time, or symptoms of weakness which they cannot explain, they must go to a doctor and get it checked up so that they can find out early stages of cancer. It is completely curable. So when we come to cancer, we talk about a stage, 4 stages, 1, 2, 3, 4. Stage 1 is when the cancer is in the
in the organ. For example, if you are talking about large intestine, cancer is restricted to that organ. It has not spread outside. Stage 2 is it is spread locally to the surrounding tissues and the lymph nodes. Lymph nodes are जो गांठ रहते हैं. For example, अगर इधर का कैंसर है तो यहाँ पे गांठ आती है, ब्रेस्ट का कैंसर है तो यहाँ पे गांठ आती है, पैर का कुछ है तो यहाँ पे गांठ आती है. वैसे ही कोलोन के अंदर जो गांठी है, वो कोलोन के गांठी है, वो बढ़ते हैं. ओके, अब इसको हम पहले टाइम हमने डिस्कस किया था पेट सीटी स्कैन. वो पेट सीटी स्कैन करने से हमको स्टेजिंग समझता है. आज की तारीख में पेट इज वेरी यूजफुल. तो स्टेज 2 में वो लिम्फ नोड्स होंगे. स्टेज 3 में वो और स्प्रेड होगा एंड इट में स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स जैसे लिवर में स्प्रेड होता है. कॉमनेस्ट लिवर में स्प्रेड होता है. एंड स्टेज 4 में सिस्टमिक स्प्रेड होता है, मतलब पूरा बॉडी में, लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में, किधर भी. तो जैसे स्टेज बढ़ता है वैसे सर्वाइवल कम है. तो इन जनरल स्टेज 1 में 70-80% सर्वाइवल है, स्टेज 2 में 60-70% सर्वाइवल है, और स्टेज 3 में एकदम कम हो जाता है 30-40%, और स्टेज 4 में सर्वाइवल होता नहीं. इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ पैलिएशन. कितना दिन पेशेंट बचेगा उतना दिन हम ट्रीटमेंट करते हैं. अब ये भी सच है कि कुछ पेशेंट्स बचते हैं. यू कैन नॉट नो व्हाई. इफ देयर इम्यूनिटी कम्स अप इट मे फाइट एंड द कैंसर मे गो अवे. एंड आज के तारीख में हमारे पास कीमोथेरेपी के जो मेडिसिन हैं जो इतने अच्छे हैं कि बहुत टाइम जो पहले हम जब सोचते थे कि ये पेशेंट ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, इवन दे आर एबल टू सर्वाइव. अगेन रेडिएशन, ऑफ कोर्स कोलोन के लिए रेडिएशन इज नॉट ऑल द टाइम रिक्वायर्ड, बट वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड, इवन रेडिएशन थेरेपी हैज प्रोग्रेस्ड. So the 3 types of treatment which we have for cancer is surgery, chemotherapy and radiation. And other types are there that we'll discuss as and when we discuss those cancers. In colon cancer, surgery is the best treatment. So if you can remove the entire cancer, you are more or less cured. लेकिन एक ध्यान में रखना है कि कोलोन कैंसर में टेम्पररी या परमानेंट कोलोस्टमी होता है. मतलब संडास की जगह यहां से निकालते हैं और एक बैग में संडास होता है. ये टेम्पररी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है. अगर नीचे की तरफ कैंसर होता है, बहुत नीचे, जहां पे हम एनस को बचा नहीं सकते, तो परमानेंट कोलोस्टमी होता है. नीचे का इंटेस्टाइन निकाल के यहाँ पे परमानेंट होगा. और किधर भी होगा वो टेम्पररी कोलोस्टमी होता है. जब तक ये हीलिंग होता है तो डाइवर्ट करते हैं स्टूल्स को. अच्छा. क्योंकि हम इंटेस्टाइन निकाल के उसको जोड़ते हैं. तो वो जोड़ने का जो क्रिया है उसमें लीकेज हो सकता है. वो लीकेज नहीं हो और संडास यहाँ से निकालते हैं. ये जब पूरा हील हो जाता है इसको बंद कर देते हैं. ये स्टेज ऑपरेशन रहता है कैंसर कोलोन का. वॉट एवर स्टेज, मतलब 2 ऑपरेशन मिनिमम होते हैं कि पहले ऑपरेशन से कोलोस्टमी के साथ ही करते हैं, फिर कोलोस्टमी बंद करते हैं. और तीसरा जो कंडीशन है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज बोलते हैं, जैसे मैंने उसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस. अब ये जो है जनरली हमारे एंडोस्कोपिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कलीग्स ही ज़्यादा ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनके पास वो डायग्नोसिस भी हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी लेट अस से 80-90% मेडिसिन से होता है. अच्छा. बहुत कम लोगों को ऑपरेशन लगता है. अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो पूरा इंटेस्टाइन निकालना पड़ता है. बट कैंसर जैसे मोटा ऑपरेशन नहीं, सिर्फ इंटेस्टाइन निकालने से चलता है. कैंसर में हमको सराउंडिंग नोड्स भी निकालने पड़ते हैं, तो वाइट रहता है उसको. इट इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिजन. रेडिकल मतलब जो ऑर्गन है उसके साथ आजू बाजू का टिश्यू भी निकालना पड़ता है. लेकिन इन्फ्लेमेटरी बाउल में सिर्फ वो कोलोन का सर्जरी होता है. और उसको दूसरे ट्रीटमेंट्स भी हैं. अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो एंडोस्कोप से जाके ब्लीडिंग बंद करना, ये सब है. ओके, तो ये हो गया ब्लीडिंग पर रेक्टम का पूरा कंडीशंस. तो इन समरी अगर ब्लड ज्यादा है तो वो पाइल्स है, अगर ब्लड कम है या उसके साथ और कोई सिम्टम्स है तो या तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज हो सकता है या कैंसर. दोनों में पेट का दर्द होता है एट सम स्टेज, और दोनों में वेट लॉस होता है, दोनों में अनीमिया होता है. अच्छा. तो अगर वेट लॉस, अनीमिया और ब्लीडिंग है या वेट लॉस, पेट में दर्द है, तो आपको जाके सर्जन को या किसी डॉक्टर को दिखाना है. पाइल्स का सर्जरी को डरना नहीं है, क्योंकि वो एकदम आसान सर्जरी है. 1 या 2 दिन ही रहना पड़ता है.
और उससे कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है और इतना टाइम आप नहीं रुके कि हमको ब्लड देना पड़े फिर ऑपरेट करना पड़े। करेक्ट करेक्ट। कैंसर का सर्जरी भी अर्ली स्टेज 1 एंड 2 में ऑलमोस्ट 100% क्योर हो जाता है, 100% नहीं बट बहुत सारा लोगों में क्योर हो जाता है पेशेंट, पूरा कैंसर हम निकाल सके तो। और जो थोड़ा स्प्रेड हुआ है उनमें भी अभी बिकॉज ऑफ न्यू मेडिसिन सर्वाइवल अच्छा है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज को तो डेफिनेटली हम दवाई से ज़्यादा ट्रीट करते हैं, बहुत कम लोगों को ऑपरेशन लगता है। और ये सब जो है बेसिकली कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, स्ट्रेनिंग से होता है और बहुत सारा नॉनवेज खाने की वजह से होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप नॉन वेज है तो वेजिटेरियन को चेंज हो जाओ, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन ले लो, और जब भी आपको ब्लड दिखता है इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ। दिस इज द टेक होम मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। ऑल राइट। वन मोर लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर, सो इसमें भी रिलैप्स होने के चांसेस रहते हैं? हाँ, जनरली पाइल्स का रिलैप्स मैंने ज़्यादा देखा नहीं है। वी टॉक ऑफ सेकेंडरी पाइल्स, जो मैंने बोला 3 o'clock, 11 o'clock एंड 7 o'clock इज प्राइमरी पाइल्स। अगर स्ट्रेनिंग होते रहा तो कभी कभी स्ट्रेनिंग से ये हो जाता है कि अपने को वापस करना पड़ता है, बट इन माई करियर आई वुड प्रॉब्ली हैव डन इट इन 35-40 years once or twice. Okay. It's very rare to have secondary piles which need surgery. Most of the times, even if it is bleeding, you can do a banding or you can do injection. And now you have laser as one more option to treat secondary piles also. So generally they don't need surgery. But that is because the person has been not taking care of his constipation. Understood. Completely the result of that person's problem. Because he is not taking care of, in spite of having undergone surgery, he is not taking care of his diet and not drinking enough water, so he is getting constipated, straining, and then because of straining it can happen. All right, wonderful. Thank you so Okay. much, doctor. So in a gist, हमने जाना डॉक्टर से कि क्या अलग अलग स्टेजेस होते हैं, कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, एंड अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं so it's better to get it checked at a very early stage, so to avoid that prolonged stuff. Thank you so much doctor. I hope this video also was very useful, very informative. अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके वी विल ऑब्वियसली गेट बैक टू यू ऑन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन. Thank you and see you soon.